عزیز طلباء السلام علیکم۔ نویں جماعت 9th کلاس کے سبق ہمارے اطراف اکناف ماتا میٹر اراؤنڈ اس کے پارٹ 2 دوسرے حصے میں آپ کا استقبال ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نفوذ پذیری ایکٹیویٹی 4 گیسوں میں نفوذ پذیری کا مشاہدہ، ایکٹیویٹی 5 مائعات میں نفوذ پذیری کا مشاہدہ اور ایکٹیویٹی 6 مائعات میں ٹھوس کے ذرات کی نفوذ پذیری کا مشاہدے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نفوذ پذیری۔ نفوذ پذیری کیا ہے؟ نفوذ پذیری ذرات کی وہ حرکت ہے جو ہائر کانسنٹریشن ایریا سے لوور کانسنٹریشن ایریا کو ذرات جب مستقل ہوتے ہیں، یعنی زیادہ مرتکز تھک ایریا کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ ایریا پھیل کر جو ہے یہ تمام فضا میں ہر سمت میں جو ہے پھیلتے ہیں۔ تو ذرات کا یہ ہر سمت میں جو پھیلنا ہے، ڈسٹریبیوشن ہے، یہ جو ہے ڈیفیوژن نفوذ پذیری کہلاتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم گیسوں میں نفوذ پذیری کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اکثر جو ہے گھروں میں ہم جو ہے اگربتی لگاتے ہیں یا عود لوبان کا دھواں جو ہے دیتے ہیں، جس میں یہ خوشبو کے جو ذرات ہے یہ تمام کمرے میں پھیل جاتے ہیں۔ تو ذرات کا یہ اس طرح کا جو پھیلنا ہے، منتشر ہونا ہے ذرات کا، اس کو جو ہے ہم نفوذ پذیری کہتے ہیں۔ چونکہ گیس میں یہ سالڈ کے ٹھوس کے جو ذرات منتشر ہوتے ہیں، لہٰذا گیسوں میں یہ نفوذ پذیری کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ نے جو ہے کبھی گھروں میں بھی دیکھا ہوگا، باورچی خانے میں، کہ اکثر جو ہے سلنڈر سے گیس لیک ہونے کی آپ کو جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سلنڈر میں کی جو گیس ہے وہ جو ہے ہوا میں، گیسوں میں جو ہے نفوذ کر جاتی ہے۔ آئیے اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک مشغلہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے اس مشغلے میں جو ہے آپ جو ہے اپنے ایک دوست کو لے کر جو ہے ایک کمرے کے کونے میں آپ کھڑے نہ ہے اور ایک دوسرے کمرے میں آپ کے دوست کو کھڑا کر دیجئے اور اس کے ہاتھ میں جو ہے ایک اگربتی تھما دیجئے۔ اب آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو کمرے میں کسی قسم کی خوشبو محسوس نہیں ہوگی، اور پھر آپ یہ کہیں گے اپنے دوست سے جو ہے اگربتی کو جلانے کے بعد آپ جو ہے 5 یا 10 سیکنڈ کے بعد جو ہے آپ کو اگربتی کی خوشبو جو ہے محسوس ہوگی۔ جب ہم اگربتی جلاتے ہیں تو اگربتی سے جو نکلنے والا جو دھواں ہے، اس میں جو خوشبو جو ہے بخاری حالت میں دھوئیں کی شکل میں جو ہے ہوا میں مل جاتی ہے، مل کر جو ہے یہ ہوا میں گزرتے ہوئے آپ کی ناک تک جب پہنچے گی تو آپ کو اگربتی کی خوشبو محسوس ہوگی۔ خوشبو کے بخارات، دھواں، ہوا کا ایک مقام سے دوسرے مقام کو حرکت کرنا، یعنی خوشبو کے جو ذرات ہے، جو بخارات ہے، جو دھواں ہے، ہوا میں جو ہے منتشر ہو کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک یہ حرکت کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی ذرات کی جو حرکت ہے، یہ حرکات کو ہم نفوذ پذیری ڈیفیوژن کہتے ہیں۔ اس مثال میں دھواں، خوشبو کے بخارات اور ہوا گیسی حالت میں ہے اور بہت زیادہ متحرک ہوتے ہیں۔ اگر کمرے میں کسی مقام پر آپ جب خوشبو لگاتے ہیں یا ڈیوڈرنٹ لگاتے ہیں تو یقینی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوشبو جو ہے تمام سمتوں میں پھیل جاتی ہے، جسے کمرے میں رہنے والے تمام افراد اس خوشبو کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ایکٹیویٹی 5 میں ہم مائعات میں نفوذ پذیری کے مشاہدے کے بارے میں معلومات کریں گے۔ اس سے پہلے ایکٹیویٹی 4 میں ہم گیسوں میں نفوذ پذیری کا مشاہدے کے بارے میں دیکھ چکے ہیں۔ اب آئیے ہم مائعات میں نفوذ پذیری کا مشاہدہ کرتے ہیں، جس کے لیے جو ہے دو شیشے کی جو ہے سراہیاں یا 2 بیکر یا 2 امتحانی نلیاں جو ہے لے سکتے ہیں، جن کی گنجائش جو کیپیسٹی ہے وہ 250 ملی لیٹر ہو، اور ان 2 سراہیوں کو جو ہے ہم پانی سے بھر دیتے ہیں۔ اب آپ نیلے رنگ یا سرخ رنگ کی سیاہی کے چند خطرے جو ہے آپ لے لیجئے، یا پوٹاشیم پر میگنیٹ کے محلول کے، اس کو جو ہے پانی میں ملا کر اس کے لکوڈ بنا لیجئے، اس کا محلول بنا لیجئے اور اس محلول کے چند خطرے لے لیجئے۔ اب آپ آہستہ آہستہ جو ہے سراہی میں ایک ایک خطرہ انک یا پوٹاشیم پر میگنیٹ کے خطرے کو ڈالیے۔ تو یہاں پہ ہم جو ہے پوٹاشیم پر میگنیٹ کے خطرے ڈالتے ہیں۔ ڈالنے کے بعد ہم یہ محسوس کریں گے کہ جو ہے یہ خطرے جو پوٹاشیم پر میگنیٹ کے محلول کے ڈالے گئے ہیں، یہ تمام پانی میں پھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی جو پوٹاشیم پر میگنیٹ کے محلول کے جو خطرے ہیں، وہ خطرے جو ہے کیا کریں گے، یہاں پہ یہ جو ہے پانی میں نفوذ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے جو ہے پانی جو پہلے بے رنگ تھا، پوٹاشیم پر میگنیٹ کی جو محلول کے چند خطرے اس کے اندر ڈالنے سے اس محلول کے رنگ میں تبدیلی رونما ہوگی اور یہ گلابی کلر میں تبدیل ہوئے گا۔ تو اس سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ مائعات بھی ایک دوسرے میں صلاحیت کر جاتے ہیں، یعنی مائعات بھی مائعات میں نفوذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو پانی میں یہ پوٹاشیم پر میگنیٹ کے خطرے ڈالنے کے بعد جو ہے پانی کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، یہ ڈارک گلابی رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی میں نیلے رنگ کی جب سیاہی کے جو خطرے ڈالے جاتے ہیں تو بھی اس کے سیاہی کے جو خطرے ہوتے ہیں وہ خطرے مائع میں پانی میں جو ہے پھیلتے ہوئے
या मुंतशिर होते हुए नजर आते हैं। आप इसका मुशाहिदा जो है घर में कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरी सियाई जो लाल कलर की जो सियाई दी गई है, इसके जरिए भी आप ये मुशाहिदा कर सकते हैं। या घर में जो है बना हुआ जो कलर जो होता है, जो पकवान में इस्तेमाल करते हैं, उस कलर के चंद खतरों को जो है कलर में मिलाकर उसका महलूल बना लीजिए। फिर इसको जो है कांच के गिलास में पानी डालकर इस तजुर्बे को बार बार आप दोहरा सकते हैं मुख्तलिफ। तो उससे हम फाइनल जो है नतीजा ये अक्स कर सकते हैं कि मायात नुफूस पजीर होते हैं या मायात एक दूसरे में सलाहियत करने की सलाहियत रखते हैं। ये अब हम देखते हैं एक्टिविटी 6, मायात में ठोस के ज़र्रात की नुफूस पजीरी का मुशाहिदा। इसके लिए जो है एक मिनखारा लीजिए और इसे पानी से भर दीजिए और इसमें पोटाशियम परमैंगनेट की चंद खलमें डाल दें। अब आप मुशाहिदा करेंगे कि पानी में पोटाशियम परमैंगनेट की खलमें डालने पर ये पानी में नुफूस कर जाएंगी और पानी के रंग को तब्दील कर देती हैं। और इसी तजुर्बे को हम कॉपर सल्फेट की खलमों के जरिए भी दोहरा सकते हैं। यहाँ पर भी हम ये मुशाहिदा करेंगे कि पानी में कॉपर सल्फेट की खलमें डालने पर ये नुफूस कर जाती हैं और जो है इसके रंग को तब्दील करती हैं। यहाँ पे ये दो मुशाहिदात की बुनियाद पर हम ये नतीजा अक्स कर सकते हैं कि जो है ठोस के ज़र्रात माए में नुफूस पजीर होते हैं। ठोस के ज़र्रात माए में नुफूस पजीर होते हैं। इस तजुर्बे को भी आप घर में इस्तेमाल करने वाले फूड कलर जो होते हैं, उस कलर को लेकर गिलास में पानी लेकर जो है वो जब फूड कलर को पानी में डाला जाता है तो आप महसूस करेंगे कि वो कलर किस तरह से पानी में मुंतशिर होता है, नुफूस कर जाता है। तो फाइनल जो है इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ये है कि गैसों में नुफूस पजीरी की सलाहियत होती है, गैसों में नुफूस पजीर होती है और मायात में नुफूस पजीर होते हैं और मायात में ठोस भी नुफूस पजीर होते हैं। 3 एक्सपेरिमेंट्स में हम ये 3 मुशाहिदात में ये चीज ऑब्जर्व करे हैं। अब आइए देखते हैं हम कि जो है डिफ्यूजन का डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ रोजमर्रा जिंदगी में इसका क्या इस्तेमाल है। फिजा में बहुत सारी जो है गैसेस पाई जाती हैं, तो ये गैसेस जो है मुस्तकिल तौर पर या मुसलसिल जो है एक दूसरे में नुफूस करती हैं और फैक्ट्रियों से आने वाला जो धुआं है, जो चिमनी के मुंह से निकलता है, ये ऊपर जाने के बाद हवा में मिल जाता है और जो है ये गायब हो जाता है। ये क्यों गायब हुआ, कहाँ गया ये? इसका मतलब ये है कि ये धुआं जो है हवा में नुफूस कर गया। जब हम नमक के महलूल को पानी के साथ रखते हैं तो आप देखेंगे कि जो है पानी का जो महलूल है वो पानी का महलूल जो है खारा हो जाता है, जिसकी मेन वजह ये है कि ये जो सोल्यूशन है, इसका जो महलूल है, ये महलूल क्या होता है, नुफूस कर जाता है। कसधातें या भरतें जो होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं एक भरत 2 या 2 से ज्यादा धातुओं के मिलने से बनती है। जैसे मिसाल के तौर पर स्टील है, ब्रॉन्ज है। ये ब्रास जो धात है, ब्रॉन्ज है, स्टील है, ब्रॉस है, ये जो धातें हैं, ये धातों से जो है कई एक डेकोरेटिव या जो है नुमाइश की जो है अशिया बनाई जाती हैं, जैसे गुलदस्ते वगैरह। तो ये एक मिसाल है ठोस में नुफूस पजीरी की। फिजा में पाई जाने वाली बाज गैसेस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस न सिर्फ नुफूस पजीरी की सलाहियत रखती हैं बल्कि पानी में आसानी से हल हो जाती हैं और हैवानात और नबातात की बका के लिए माविन होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं हैवानात ऑक्सीजन गैस को लेते हैं सांस के तौर पर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं, और नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करने के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान, शुआई तरकीब के अमल के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हासिल करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस नुफूस कर जाती है इसके अंदर और ऑक्सीजन गैस भी इसके अंदर नुफूस करके बाहर आ जाती है। तो ऑक्सीजन नुफूस पजीरी की वजह से आपके फेफड़ों से खून में शामिल होती है। तो हम जो सांस लेते हैं वो सांस के जरिए जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन फेफड़ों में खून में किस तरह से शामिल होती है, बोलते खून में ये नुफूस पजीरी की वजह से खून में शामिल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खून से जो है फेफड़ों में नुफूस पजीर होती है, यानी बाहर खारिज होती है। खून से फेफड़ों के जरिए जो है ये बाहर नुफूस पजीर हो जाती है। हम कह सकते हैं कि ठोस, मायात और गैसेस मायात में नुफूस कर जाती हैं और ये कि मायात की नुफूस पजीरी की शरह ठोस अजसाम से ज्यादा होती है। अगर हम इनकी जो है ठोस पजीरी की जो शरह है वो देखते हैं तो ठोस, माए और जो गैसेस है ये जो है मायात में नुफूस पजीर होते हैं। गैसेस की नुफूस पजीरी की जो शरह है वो ज्यादा होती है बनिस्बत जो है मायात और ठोस के। ये एक गैस से दूसरे गैस में नुफूस पजीरी की जो शरह है ये डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। उसी तरह से एक माए से दूसरे माए में भी इनकी जो नुफूस पजीरी की जो शरह है
वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। यानी दो गैसेस में अलग अलग अंदाज में नफूस पजीरी होती है, उसी तरह से दो मायात के अंदर भी जो है जब ये ज़र्रात नफूस पजीर करते हैं तो इनके अंदर भी डिफरेंस पाया जाता है। माए में या गैसेस में ज़र्रात का मुसलसिल तौर से हरकत करना या ज़र्रात की मुसलसिल हरकत, ये जो है डिफ्यूजन नफूस पजीरी कहलाती है। और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन गैसेस यानी नफूस पजीरी गैसेस की गैसेस में जो है गैसेस की नफूस पजीरी होती है। जिस तरह से आप इससे पहले देख चुके हैं कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस ये एक दूसरे में नफूस कर जाते हैं। इसमें होता यह है कि एक गैस के तालीमात के दरमियान जो जगह होती है या ज़र्रात के दरमियान जो जगह होती है वो जगह में दूसरी गैस के तालीमात जाकर बैठ जाते हैं या उसको जगह को फिलअप करते हैं। जैसा कि आप मिसाल देख सकते हैं, ये अगरबत्ती से जो निकला हुआ जो धुआं है, ये धुआं जो है कमरे के तमाम जो हवा के जो ज़र्रात है वो ज़र्रात में उसके ज़र्रात के दरमियान जो है बैठ जाता है। उसी तरह से आप देख सकते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स के माए में गैस की जो है नफूस पजीरी किस तरह से वाक़ होती है। जैसा कि आप जानते हैं गोली सोडा या जो है मशरूबात वगैरह, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है शामिल होती है। पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस या मशरूब के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस शामिल होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो सालिमात है, जो ज़र्रात है, ये इस महलूल या पानी के ज़र्रात की दरमियान जो जगह होती है वो जगह में ये बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है गैसेस जो है मायात में नफूस पजीर होती हैं। डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स के बारे में जब देखते हैं आप, जैसा कि आप जानते हैं पोटाशियम परमैंगनेट के महलूल के चंद खतरे जब पानी में डाले तो ये पानी के पूरे रंग को तब्दील करते हैं। इसका मतलब यह है कि पोटाशियम परमैंगनेट की जो ज़र्रात है, ये ज़र्रात जो है पूरे पानी में नफूस करते हैं। ये माए की नफूस पजीरी को बताता है। डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में आप देख चुके हैं कि पोटाशियम परमैंगनेट के जो खलमें थी वो खलमें जब हम पानी में डाले तो इसके जो है रंग में तब्दीली वाक़ हुई और इसके जो ज़र्रात है, ठोस के ज़र्रात, ये तमाम पानी में मुंतशिर हुए हैं।